See, this is the section B paper of this year, CEC paper, and it was so very easy. We have already done all this, right? There are 4 lectures. YouTube channel में तुम लोग देख ही सकते हो. जैसे और मैंने सबका playlist भी बनाया हुआ ही है, right? So you should go to the playlist, and in that BA na business analytics you will go, right? So here there are 4 lectures. BA01 of scale of measurement and central tendency and dispersion. So the central tendency only you have the syllabus in the CEC. So you have to watch these 2 lectures only, right? And then this is probability. So today I will first discuss this. Here the first question is PL, and what does come under the central tendency? You should know how to calculate mean, how to calculate standard deviation, mean and standard deviation of population and sample. Then you should know how to calculate coefficient of variation, then geometric mean, CAGR, CGPA, growth factor, all, and weighted arithmetic mean. All these are important. And all this, I have already shared these files in the drive also, and drive link I have pinned in the WhatsApp group also, right? So this is the file number 02. In this, all the formulas are there and the basic steps are there. And from this file only I have explained in the lecture BA02. So that you all will watch. So the whole concept will be clear. But still I will again discuss in brief while solving these questions of CEC. There are 4 questions in this, and each carries 25 marks. The first one is कि PN Limited has shown the growth in sales turnover as per the data below. So year 2019, 20, 21, 22, and what is the growth percentage that is given in percentage. And calculate the average growth over the last 4 years using geometric mean. Using geometric mean. Same type of question we have discussed in the past 2023 midterm paper also, and here also. In this also one question was there of geometric mean, in which it was given that the stock increases or decreases by the following percentage. And then you have to find the geometric mean and then the annual growth rate. I have solved this. So see, what you have to do is, this is your business analytics. First, I have written here the year and growth percentage that is given in the question itself. ये तो question में ही दिया हुआ था, right? I will open the question separately. Maybe here is the question. Here. See, the year and the growth percentage. These 2 columns were given in the question, जो मैंने यहाँ पे copy किया, year और growth rate. और geometric mean उन लोग ने बोला है use करना है हमें, right? Whenever it is given in percentage, so you will always first calculate the growth factor. Growth factor. How to calculate the growth factor? 1 plus this percentage. 24% means 24 upon 100. So 24 upon 100 is 0.24. So this 1 is by default. Growth factor calculate करने का system क्या है? 1 plus the given percentage. But अगर ये negative होता, minus होता, तो 1 minus that percentage. All this percentage are positive, right? Negative होता तो हम negative भी करेंगे. जैसे यहाँ पे दिया था कि declines by 20%. तो 1 minus 0.2 किया था और ये growth factor हमने निकाला था. तो यहाँ पे growth factor निकाला 1 plus 0.24 and like that, right? So all the growth factor has been calculated here, right? One plus 0.24, 1 plus 0.36, 5% means 5 upon 100, so that is 0.05. So 1 plus 0.05. And 9% means 9 upon 100, that is 0.09. So 1 plus 0.09. Ye growth factors are here, right? Then what we have to do is, the formula of geometric mean is to multiply all the growth factors
जितने भी ग्रोथ फैक्टर है सबको मल्टीप्लाई करना है एंड रेज टू 1/n. If there are 4 growth factors, then raise to 1/4. If there are 6 growth factors, then raise to 1/6. And multiply all the growth factors. So you will get the geometric mean, right? So that is here. I have multiplied all the growth factors, 1.24 into 1.36 into 1.05 into 1.09. There are 4 numbers, right? So what I have done is raised to 1/4. And this you can solve in scientific by normal calculation only. This is normal bracket. All the number and multiplication sign are normal. Then close the bracket and then power key. पावर वाला की जो x raised to y की होता है वो प्रेस करने के बाद ये 1/4 टाइप करना है और तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा. दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन. But they have not asked geometric mean. They have asked you average growth over the last 4 years. So what is the growth rate or average growth? Average growth rate is nothing. Geometric mean minus 1. From the geometric mean, you should subtract 1. So 1.1787 minus 1 will give 0.1787. Multiply it by 100. To convert it into percentage. So your average growth rate is 17.87%. So your growth rate, so this was of geometric mean. So simple question it was, right? और मेरा तो ये चारों क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर ही हो गया. मैंने कैलकुलेशंस भी मैन्युअली किया, आज ही मैंने इसको सॉल्व किया. तो ये पेपर तो बी डिवीजन का जो भी पेपर है ये तो बहुत इजी था. यस. Sir, can you just go on that this next page which you were showing right now, the answer thing? Yes. So, sir, how do you this thing? So, this is totally you can do it on the calculator, right, sir? Yes. So, 1.24 into 0.36 into 1.05 into 1.09 raised to. Raised to divide in the bracket, you will type 1 divided by 4. Okay. Sir, so you have to shut the bracket and then you have to keep that thing, no? Yes. Sure. सबको क्लियर है? सबको ये वाला क्वेश्चन और ये मिड सेम के लिए भी इम्पोर्टेंट है. दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर मिड सेमेस्टर आल्सो, राइट? नॉट ओनली CEC, राइट? दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस 2 कॉलम्स वाज गिवन. पहले ग्रोथ फैक्टर निकाला, देन ज्योमेट्रिक मीन निकाला, एंड देन I have found the average growth rate, right? So this everyone should know first. Here, anyone have any doubt? No, sir. Sir, on the calculator, sir, I'm not even having a little difficulty. This calculator doubt you can ask after the lecture, okay? Whatever calculation doubts are there, no, sir. Like on the calculator, it's not happening that way. I'm saying, sir. But saying on calculator, you are not getting this. No. When I'm putting it on the calculator, sir, that time I don't know what is happening. So for calculated out, you ask me after the lecture, right? Like that I'm saying. Because what you are doing, I don't know, in Calcipo. I will share the screen of calculator and then I will show in the end after the class, okay? So you can just note it down, whatever calculation problem is there anyway. After the class. Okay. Sir, why did we do this 1/4? It is a formula, this thing. No. In the formula it is 4 numbers. If there are 5 numbers, we will take 1/5. The formula is 1/4. How much ever the numbers are there, we have to put that. Yes. Okay. Clear? So this was the question.
Then this question is also very important, question number 2. And not only for CC, but for mid-sem also. Mid-sem में तो इस type का question आएगा ही. What is the question is, a quick commerce app wants to assess the consistency in customer purchase values across 2 product categories, snacks and fresh produce. 2 products are there of a quick commerce app, snacks and fresh. The app collected a sample of customer purchase value in rupees for each category as follows. तो fresh produce का यहाँ पे दिया हुआ है 5 सैंपल, 5 कस्टमर का कितने रुपीस का उन्होंने खरीदा, और स्नैक्स का भी उन्होंने दिया हुआ है कि कितना खरीदा. दोनों का 5-5 कस्टमर्स का उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया. यहाँ पे वर्ड है सैंपल. तो पहले इन्होंने बोला है कैलकुलेट द मीन and sample standard deviation of purchase values for each category. दोनों का mean sample standard deviation, this is sample. तो standard deviation निकालना है दोनों का, right? तो वो तो बहुत सिंपल है, वो तो सबको आना ही चाहिए, वो तो सबको आना ही चाहिए, right? So how to do that? First, this is your fresh produce. The numbers are given, right? Numbers जो दिया हुआ है x का वो मैंने यहाँ पे लिखा पहले in the first column. There are 2 methods. इसको भी ये नहीं आता है. First, second वाला lecture BA02 और BA01 का end part भी सुनना वापस, तो भी Sir, clear हो जाएगा, right? sir, Yes. sir, if we directly do the standard deviation, do we have to show that the mean also? Okay, first we have to calculate the whole mean, then we have to do again the mean plus the standard deviation. If you read the question, they have asked the mean also and standard Yeah, deviation. yeah, sir. So that's what I'm saying. So in standard deviation, mean will also come now. So that will. Yes. Okay. So Sir, can you give us 2 minutes to solve it? you or can 5 minutes? solve, I will explain. You can solve side by side and I will explain also side by side, right? Okay. Yes. So here, yes, Pudimenta. Sorry, just I wanted to say, Xerxes, can you just park your dots for a minute? We have CEC tomorrow. Just let's solve everything. Yeah, sure. Later you can Okay. we have to solve all types of problems, Okay, fine. because like this we won't be able to solve all the problems. Right, true. Thanks. Okay. So, see, first understand and जिसको try करना है सब try भी करो, और जिसको भी ऐसे कुछ major doubt है तो class के बाद भी पूछ लो, ठीक है? And after 10:45 you all can call me also for any doubts, right? You know, if you practice. So, see, this is given in the question X. X was given in the question. Mean और standard deviation निकालने बोला है. तो mean निकालने के लिए सबसे पहले तो you have to take the total of all this. Take the total of all this जो भी यहाँ पे दिया है number 120, 122, 121, 119, 118. You have to just add it. The total is 600. And the formula of sample we denote x bar, and the formula of the mean is summation x upon n. Summation x means the total of this x, which is 600, divided by 5, because there are 5 numbers. So you will get x bar 120. Now there are 2 methods of solving this standard deviation. 2 formula है, 2 method है, जो मैंने BA02 में explain किया है या BA01 के end में किया है. Right? There are 2 methods, method 1 and method 2. This is method 2. So I have solved this by method 1. This is method 1. Right? So why I have solved this method 1? Because this mean was a whole number. Mean जो है ना वो whole number था 120. तो हमारा ये जो number है ना ये छोटा हो जाता है. दूसरे मेथड में हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर बनाना है. तो एक्स स्क्वायर अगर हम 120, 122 का लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो नंबर्स. तो दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है ना. यू कैन फॉलो एनी मेथड बिकॉज कैलकुलेटर तो है,
बट मैंने तो ये बिना कैलकुलेटर ही कर दिया बिकॉज नंबर्स छोटे थे, राइट? सो x minus x bar. So 120 minus this x bar. X bar is also 120. From all these numbers, you have to subtract this mean. Mean is 120. So from all these numbers, right? From 120, 122, from all these numbers, you will subtract this. Right? तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला? 120 minus 120, 0, 122 minus 122, and 121 minus 120, which is 1, like that. और फिर इसका स्क्वायर निकाला, स्क्वायर ऑफ दिस कॉलम, है ना? स्क्वायर ऑफ दिस कॉलम 0, 2, 1 minus 1 and 2, which is 0, 2 का स्क्वायर 4, 1, 1 and 4, and the total of this, which is 10. Total of this is 10. And the formula of standard deviation, which is already I have shown in this file number 02. सारे formulas लिखे हुए हैं, सब कुछ इस ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो. All these files have already been uploaded, right? है ना? तो यहाँ पे है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल. सैंपल है ये, पॉपुलेशन नहीं है. दोनों में फर्क क्या है? इसमें हम n लेते हैं डिनोमिनेटर में. इन द सैंपल वी टेक n-1. तो समेशन x minus x bar whole square upon n-1 पूरा स्क्वायर रूट. This is the formula that I have written here. Standard deviation. This is the symbol of standard deviation, sigma. Square root of summation x minus x bar upon n-1. So summation x minus x bar square is 10. 10 upon n was 5. There are 5 numbers. So 5 minus 1. So 10 upon 4, you will get 2.5. Square root of 2.5, you will get 1.58. This is your standard deviation. So in the first part, they have asked you to calculate the mean and sample standard deviation. दोनों के लिए निकालना है, फ्रेश प्रोड्यूस के लिए भी और स्नैक के लिए भी. ये तो मैंने फ्रेश प्रोड्यूस का निकाला है, वैसे ही सेम और स्नैक मैंने यहाँ पे राइट साइड में निकाला है. स्नैक को मैंने y यूज किया. I have used y for snack. So this number 60, 180, 40, 200, 120, you know, these numbers are given in the question paper. ये यहाँ पे दिया हुआ था, बस ये नंबर दिया है. तो फिर मैंने क्या किया? टोटल लिया. इसका टोटल भी 600 है. देन मैंने y बार निकाला, that is mean of this snack, summation y upon n, that is 600 upon 5. तो 120 सेम आया मीन, तो है ना? मीन वाज सेम, इसका भी 120 था. बट Sir, can you little bit scroll down little bit? That's it. That's it. Then again you have to prepare this y minus y bar. So 60 minus 120, which is minus 60. 180 minus 120, which is 60. 40 minus 120, which is minus 80. 200 minus 120, which is 80. 120 minus 120, which is 0. And then the square, 60 ka square, 3600. 60 ka square, then 80 ka square. And the total of this column, which comes to 20,000. Then same formula for standard deviation. यहाँ पे y use किया है, so I have written y minus y bar whole square upon n minus 1. So 20,000 upon 5 minus 1, 20,000 upon 4 will give you 5,000. Then square root of 5,000 is 70.71. So mean और standard deviation सबको समझा.
कि कैसे कैलकुलेट करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो सबको आना ही चाहिए. Yes, Any sir. doubt to anyone No, sir. in calculating mean and standard deviation? Then whenever they ask consistency, variability, you know, or anything risky, so whenever they ask this, they interpret the consistency, variability, which project is risky or any such. यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये जो फाइल नंबर 02 है, ये क्या वर्ड आएगा कि वेरिएबिलिटी, है ना, वेरिएबिलिटी, होमोजेनिटी, कंसिस्टेंसी, रिस्की, ये सब अगर कुछ भी पूछते हैं तो तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है. और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. So that only I have done here. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने इसका निकाला है, फ्रेश प्रोड्यूस का, और फिर स्नैक का भी निकाला है. फ्रेश प्रोड्यूस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100. स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 1.58, एक्स बार वाज 120, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन तो हमारा आया 1.32%. सिमिलरली मैंने इसका भी निकाला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. Standard deviation is 70.71 upon the mean was 120 into 100. इसका आया 58.92%. So what you should remember in this, they have asked consistency. Consistency अगर पूछते हैं तो सिंपल एक रूल याद रखो कि जिसका CV, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट है. तो आई हैव रिटन द परचेसिंग बिहेवियर इज मोर कंसिस्टेंट फॉर फ्रेश प्रोड्यूस. ये फ्रेश प्रोड्यूस का है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है. द परचेसिंग बिहेवियर इज मोर कंसिस्टेंट फॉर फ्रेश प्रोड्यूस देन स्नैक एज इट्स सीवी इज लेस. जिसका सीवी ज्यादा है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, वो ज्यादा वेरिएशन शो कर रहा है, और ये कंसिस्टेंट है जिसका सीवी कम है. वैसे ही अगर होमोजेनिटी आता है, होमोजीनियस आता है, तो जिसका सीवी कम है वो होमोजीनियस है. और रिस्की आता है अगर कि विच प्रोजेक्ट इज रिस्की, तो जिसका सीवी ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की होगा, जिसका सीवी कम है वो कम रिस्की होगा. तो ये याद रखना है, कंसिस्टेंसी, जिसका सीवी कम है वो कंसिस्टेंट है, राइट. जिसका सीवी कम है दैट इज लेस रिस्की, जिसका सीवी कम है वो ज्यादा होमोजीनियस है, और जिसका सीवी कम है वो कम वेरिएबल है. तो वेरिएबिलिटी, कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी और रिस्की, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन दे माइट आस्क यू दिस. एंड ये भी मैंने फाइल नंबर 02 में इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट. और ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर्स, BA01 and BA02. बट दिस वाज CEC पेपर दैट आई एम डिस्कसिंग, क्योंकि बहुत लोगों का कल भी है. तो ये टाइप का क्वेश्चन CEC में आए या नहीं आए, मिड सेम में 99.99% आने ही वाला है. बैट्समैन के स्कोर दे देंगे, 2 स्टूडेंट के मार्क्स दे देंगे, कुछ भी हो सकता है, 2 प्रोजेक्ट का कैश फ्लो दे देंगे. सो दिस क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बाय कैलकुलेटिंग द CV, interpreting its consistency or variability or risky. Clear? Any doubt in this question to anyone? No, sir. Clear है सबको? Now the third question. This is of weighted arithmetic mean. Company runs 3 ad campaigns with the following ROI across all budgets. There are 3 campaign ABC. ROI is given 12, 8 and 10.
and budget is given 2 lakh, 1 lakh 50 and 50,000. So तुम्हें ROI ढूंढना है, weighted average ROI. तो ROI will be X and budget will be weight, your weight. But देखो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है वेटेड एवरेज का. जैसे फाइव में अगर मैं बताता हूँ वेटेड अरिथमेटिक मीन, द फॉर्मूला इज दिस summation x into w या w into x divide by summation w. So what should be x and what should be weight, that you have to decide. अगर weighted ROI पूछा है तो ROI will be x and budget will be weight. Budget will be weight, right? So what? So, you sir, can do is- yes. so whatever is first given in the bracket, that will be X, right, sir? No. Whatever is given first, that would not be x. Okay. भी weighted average क्या पूछा है? ROI. Weighted average budget नहीं पूछा है ना. Right. अगर weighted average budget होता तो budget x होता और ROI w होता. अच्छा. So if budget was first and then ROI would be second, then it would be that way, right, sir? Yes. Okay. So here weighted average ROI. So ROI is x and budget is weight. You have to find w into x. Not w into x means 2 lakh into 12. So that would be a very huge number. वो भी कर सकते हो, but मैंने थोड़ा simplify करके किया. You can directly multiply. See, this was given in the question. Campaign was given in the question, right? And ROI was given and budget was given. तो मैं बजट को ही W लेके 2 लाख इंटू 12 भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ना सब में ना कॉमन जीरो है, चार जीरो सबके अंदर है ना. Here also 4 zeros are there, here also 4 zeros are there, here also 4 zeros are there. तो मैंने क्या किया, अगर वेट में जितने भी कॉमन जीरो है ना, you can cancel them to simplify the answer. और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम्हारा आंसर यही आएगा, 10.25 ही आएगा. इवन इफ यू मल्टीप्लाई 2 लाख इंटू 12 तो तुम्हारा जो टोटल आएगा वो ज्यादा आएगा, बट जो वेट होगा इसका भी टोटल 4 लाख आएगा. 40 की जगह मेरा वेट का टोटल 40 आया, तुम्हारा बजट का टोटल 4 लाख आएगा, तो यू विल डिवाइड बाय 4 लाख. So ultimately the answer will be same. So directly you can take W, this budget, then budget into ROI, W into X, take the total of that column, divide by the total of budget column. One method is that. But just I was doing orally ना, मेरे पास calculator था नहीं, तो मैंने क्या किया, जीरो को हटा दिया, यानी 4 जीरो मैंने कैंसिल किया तो क्या बचा 20. इसमें से 4 जीरो कैंसिल किया तो 15. इसमें से 4 जीरो कैंसिल किया तो 5. Then I have multiplied 12 into 20, that is 240. 8 into 15, 120. 10 into 5, 50. And I have taken the total of weight. Weight का total लेना है, which is 40. W into X का total लेना है, which is 410. And then summation of W. Total of W is 40. Total of WX is 410. And weighted average, you have to apply the formula. 410 upon 40, that is 10.25. And because this ROI was given in percentage, ये percentage में होता है ना ROI, percentage नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, only if you will write 10.25, that is also fine. So this is your weighted average ROI. So, Right. sir, if we, as you said, we can direct, right now there were 4 zeros, that's why we were able to cancel it. Right, Yes, sir? yes, you can directly So, multiply it. so directly if you multiply 12 into 2 lakh, okay, so whatever the answer comes, sir. So then after that, what? Same ही आएगा answer. The final answer will be 10.25 only. Sir, whatever the answer comes, that will be WX, right? Summation Ah, WX. W into X. Yes. Ah. This column So- will not be there. This column will not be there. Whatever you multiply, you will write in this column. You will Right. take the total of this column, last column,
and divide it by the total of budget. Then you Acha. get this only 10.25. Acha. Okay. Right. Okay. Okay. Yes, Shikha. सो इसके पहले वाले आपने जो जब आपने पढ़ाया था तो वहां पे क्रेडिट्स करके भी आपने एक सम था ना? हाँ। तो वो वाला कैसे समझेगा कि हमें क्रेडिट वाले से करना है कि वेट वाले से करना है? मतलब ये थोड़ा डाउट है मुझे बस। क्रेडिट वाला एक्सेल में था जिसमें CGPA निकाला था, वो बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ। ये वाला? नहीं नहीं, ये वाला नहीं। हाँ, यही वाला यही वाला यही वाला। तो इसमें आपने क्रेडिट आर्ट से किया था ना, डिवाइड बाय? नहीं, हाँ, क्रेडिट आज दिया था ना, और इन लोग ने CGPA बोला है। CGPA यानी क्या? ग्रेड ना। ओके ग्रेड इज X ना, ओके। और जो दूसरा है वो W हो जाएगा। बट ये जो ग्रेड दिया है ये तो ABBC अल्फाबेट्स था, बट उन लोग ने उसका नंबर दे दिया था, करस्पॉन्डिंग नंबर, कि A मीन्स 10, B मीन्स एंड C मीन्स 6, है ना? तो ये हमारा X हो जाता है, बिकॉज ग्रेड पूछा है, वेटेड एवरेज ग्रेड। CGPA के लिए भी वेटेड अरिथमेटिक मीन करना है, और उसमें जो भी ग्रेड पॉइंट्स होगा दैट विल बी X, और उसके अलावा जो भी नंबर होगा दैट विल बी W, राइट? तो यहाँ पे जो आपने मतलब वो ग्रेड का दिया हुआ था, मतलब अगर क्वेश्चन में अगर समझो ऐसे कुछ है कि मतलब क्रेडिट आवर्स और एक है, तो पता कैसे चलेगा कि हमें ग्रेड से करना है कि उस वेट से करना है? वो एक वही क्वेश्चन था, मैं आपको भेजती हूँ, उसमें थोड़ा मुझे डाउट आया था, मैं आपको भेजती हूँ। ओके। CGPA में तो हमेशा देखो ग्रेड लो, और जो भी क्रेडिट आवर्स या दूसरा कुछ भी दिया है वो हमारा क्या हो जाएगा? वेट, है ना? इसमें क्योंकि ROI पूछा था तो ROI X है, द रिमेनिंग इज द बजट, राइट? और एक मेरे ये फाइल नंबर 02 में भी एक टाइप का सम है वेटेड एवरेज का, राइट, है ना? जिसमें क्या था कि 3 स्टूडेंट के ये दिए थे, तो यहाँ पे तो वेट क्वेश्चन में मेंशन ही था, बट वेटेड एवरेज मार्क्स हमें निकालना है, तो मार्क्स इज X एंड वॉट एवर द अदर थिंग इज दैट इज योर W, राइट? तुम भेजो, ये पेपर के बाद वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन आल्सो। ओके ओके, आई विल सेंड यू। तो ये क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत ही इजी पेपर था। दिस पेपर वाज वेरी थोड़ा सर, right now I was solving this ROI का this thing. Sir, what is the answer you are getting, sir? Because when I'm multiplying 12 into 2 lakhs, 8 into this thing, I'm getting a total after calculating all the three. I'm getting is 302000. So, and divided by 4 lakh, it is coming. No, तुमने रॉन्ग किया है। 2 lakh into 12 is 24 lakh. That I know, 24 lakh. 1 lakh 50 into 8 is 8 12 is lakh. 12 lakh. 50,000 into 10 is 5 lakh. 5 lakh. 24 plus Yes. 36 plus 5, 41 lakh will be the answer. But you are taking some total wrong. अच्छा, तो total wrong है. हाँ, वो total 41 lakh आएगा. अच्छा, 41 lakh divided by 4 lakh, the answer will be same, 10.25. 41 lakh. Okay. Yes, the total of W into X will be 41 lakh. अच्छा. Not 32 lakh that you are saying. No, Okay? no. अच्छा, okay, okay. Yes. So see, this is also a geometric mean. Which investment had a better average return? Investment 1, investment 2. And use growth factor. यहाँ पे दिया है कि use growth factor. अब अगर ग्रोथ फैक्टर नहीं होता तो हम लोग इसको सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, बट इन लोग ने दिया है ग्रोथ फैक्टर। अब यहाँ पे भी बोलोगे सर ग्रोथ फैक्टर तो अभी तो हमने किया, यहाँ पे भी हमने ग्रोथ फैक्टर निकाला, बट डिफरेंस इज हियर इट वाज गिवन इन परसेंटेज। तो ग्रोथ फैक्टर हमने कैसे निकाला? 1 प्लस दैट परसेंटेज अपॉन 100। Here it is given in rupees, it is not percentage, the amount is given. So how to calculate the growth factor? And if this is not mentioned to use growth factor, so directly how can we calculate? You should know both the methods. But growth factor वाला ही follow करो
क्योंकि अगर ये आता है इस तरह का क्वेश्चन इन द मिड सेम आल्सो एंड इफ इट इज ऑफ 15-20 मार्क्स, तो फॉलोइंग द ग्रोथ फैक्टर इज बेटर, बिकॉज नहीं तो बहुत छोटा सा सॉल्यूशन हो जाता है. तो आई हैव सॉल्व्ड हाउ टू कैलकुलेट द ग्रोथ फैक्टर एंड देन हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न. ग्रोथ फैक्टर निकाल के वही ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे और फिर एवरेज रिटर्न निकालेंगे. तो ये भी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है और लिखा भी है यहाँ पे. ये इन्वेस्टमेंट 1 है, ईयर दिया हुआ था, ये अमाउंट भी दिया हुआ था, मैंने खाली क्वेश्चन से कॉपी किया है. आई हैव कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन द फर्स्ट 2 कॉलम्स. यस शिखा, yes I will show both the ways. Yes Shikha, any doubt? क्लियर. तो क्या किया है मैंने यहाँ पे, ईयर और इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन में दिया था वही कॉपी किया है. ये ईयर है और ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के सारे अमाउंट मैंने कॉपी किए. और फिर करना क्या है, ग्रोथ फैक्टर निकालना है. तो अगर देखो 0 ईयर का तो कुछ नहीं होगा, फर्स्ट का कुछ भी नहीं होता है, डैश डाल देना है. अगर 1 से चालू होएगा तो हम 1 में डैश डाल देंगे. 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 में डैश. फर्स्ट ईयर का ग्रोथ फैक्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट डिवाइड बाय दिस प्रीवियस ईयर अमाउंट. फर्स्ट ईयर का ग्रोथ फैक्टर निकालना है तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट. मैंने 2-3 का यहाँ पे लिखा भी है. 16,100 डिवाइड बाय 15,000. I have rounded off up to 2 decimal places. 2 decimal places. और ये तो मैंने फोन के ही कैलकुलेटर से किया, क्योंकि ये तो मुझे ओरली नहीं कर सकता था. फोन में भी नॉर्मल कैलकुलेटर होता है. 16,100 डिवाइड बाय 15,000 and then 17,174 divided by previous amount. Then 17,688 divided by 17,174. Like that, 18,219 divided by 7,688 will give you this 4th year का. फिर 5th year का. तो वैसे ही 8th year का निकालना है. तो amount of 8th year 23,544 divided by the previous amount 21,500 will give you this 1.10. Right? Yes, Shikha, any doubt? Clear है सबको ये? Yes, I will send this file. ये फाइल में ही पेपर मैंने अटैच कर दिया है, ये पीडीएफ. और ये पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेजने वाला हूँ. इसमें मैंने पेपर भी अटैच किया है. फाइल नंबर 09 BACEC 2025 आंसर्स. ये फाइल का नाम है. आई विल सेंड दिस आफ्टर द लेक्चर. इसमें ही 4 क्वेश्चन है और उसके नीचे ही उसके सॉल्यूशन भी है. राइट. तो ग्रोथ फैक्टर सबको क्लियर है कैसे निकालना है जब अमाउंट दिया है, और ग्रोथ फैक्टर कैसे निकालना है जब स्टेज दिया है. Sir, Yes. can you go on that page right now for a second on the answer sheet? Sir, the last one, when we are calculating the 10th year, that time we will take what, sir? Because when we reach up to 8th year, that time we'll be taking is 24,468, No, right? no, no. Divided We by have taken- No. 8th year पे 8th year का amount divide by 7th year amount previous year. Okay, sir. Then it will be 8th. Then it will be 8th year ka. We'll write as 24,468 That is divided the by. 9th year. That is हाँ, not हाँ. the 8th year. Sir. But then we have to go down, na? Because the first one we skipped. मैं वही बोल रहा हूँ, डाउन नहीं जाना है. 8 ईयर का अगर तुम्हें निकालना है तो 8 ईयर का अमाउंट डिवाइड बाय 7 ईयर का अमाउंट. नीचे नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है. And then 9th year ka amount will be 9th year ka amount minus the 8th year ka amount. Divide by 8th year ka amount, na? Divide, sir. So divide. 24,468 divide by 23,544. और 10th year का निकालना है तो फिर 25. 25,447 divide by 24,468. Okay.
Thank you, sir, Then because in the start we were missing that one as the first one we are और not उसका previous calculating. amount नहीं है ना, उसके ऊपर कोई हाँ, अमाउंट नहीं है, तो उसका नहीं निकाल सकते. right. So then finding the geometric mean के लिए क्या करते हैं, सारे ग्रोथ फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, और कितने ग्रोथ फैक्टर है, 10 है, तो रेज टू 1/10 all the growth factor multiplied and raised to 1/10, है ना, raised to 1/10 because there are 10 numbers. So it will come 1.0453. ये तो geometric mean हो गया, but they have asked you average return. Average return या CAGR, इसको CAGR भी बोलते हैं, compound annual growth rate. Average return, growth rate, compound annual growth rate, कुछ भी आएगा तो यही मेथड है. 1.0453 minus 1, that is 0.0453, and multiply by 100 to convert it into percentage. So your average return of investment 1 is 4.53% per annum. This average return is also known as CAGR, compound annual growth rate. अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए आता है, परसेंटेज दिया है या अमाउंट दिया है, तो सेम जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बताया, सेम स्टेप्स तुम लोगों को करना है. यस बुद्धिमंता. सर ग्रोथ रेट आपने कहा एवरेज रिटर्न के नाम से भी आ सकता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से भी आ सकता है, राइट? यस, और सिर्फ ग्रोथ रेट बोला है तो भी. ओके, ये तीन ही वैरायटी है, राइट, जिसमें Yes, हमें yes. ग्रोथ रेट निकालना है. यस, ओके, है ना, क्लियर है सबको. यस सर. सिमिलरली Sir, can you repeat growth amount GN कहते हैं, फिर then they're saying compound annually and then one more, what did you say, sir? compound annual growth rate, CAGR. CAGR is the short form of that. Growth rate, CADR. CAGG. अच्छा, GR. Goa. Okay. 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 And sir, in the end, why are we doing -1, sir, average this thing? क्या? Here, when we are doing average return, sir, so here, why are we doing फॉर्मूला -1? नहीं है, फॉर्मूला में ही है. अच्छा. पर अगर 1 रुपया हमने इन्वेस्ट किया और इतना हमारा बन जाएगा तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो 1, बिकॉज वी आर टेकिंग द ग्रोथ फैक्टर ना. अच्छा. Okay. So in the question it is asked here, we have to remove the average return. Yes, yes. Okay, sir. Similarly, you have to find for investment 2 also. Investment 2 के लिए भी सब अमाउंट दिया है, सब ईयर दिया है, और they have asked कि which investment had a better return. So you will find for investment 2 also, I have done that. All the amount, then first growth factor. This amount divided by the previous amount. Like that, you will get all the 10 growth factors for investment 2. And then same geometric mean, multiplying all the growth factors raised to 1/10 because there are 10 numbers. Right? और Right, sir. geometric mean आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस करना है, तो 0.850 उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट विल बी 8.50%. ये इन्वेस्टमेंट 2 का आ जाएगा, और ये इन्वेस्टमेंट 1 का आया था 4.53. तो विच इज बेटर? 4.53 इज बेटर और 8.5 इज बेटर? Sir, 8.5. Yes, investment 2 had a better average return. So, sir, in this type of a sum, they will always ask is average return. Average return or CAGR or growth rate.
अच्छा राइट? सो ये ग्रोथ रेट का है ना, Sir, ग्रोथ. can you just show the solution again? यस. Sir, can you show the second way you are going to do? What? You said a second way we can solve this, right? यस यस, आई विल सॉल्व दैट. उसका सॉल्यूशन नहीं है, मैं ऑलरेडी बोलता हूँ, तुम लोग लिख लेना. देखो बहुत सिंपल है और मैं बताता हूँ वो भी कैसे करना है. एक फाइल है जिसमें सॉल्व है ये सेकंड मेथड भी. ये भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है ड्राइव पे. तो दी सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग अ CAGR, अगर ये नहीं होता, यहाँ पे तो इन लोगों ने क्वेश्चन में दिया है कि यूज ग्रोथ फैक्टर, ये वर्ड नहीं होता. या होता है कि फाइंड CAGR या सिर्फ एवरेज रिटर्न या एवरेज ग्रोथ रेट. तो ये तो हो गया बहुत लॉन्ग कट मेथड, बट मेंशन था यूज ग्रोथ फैक्टर, तो ऐसे सॉल्व करना है. मेंशन नहीं है तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एक है. ये तो वो सेम टाइप का है, परसेंटेज दिया है, तो ये तो हमने सॉल्व किया है. और एक देखो ये रहा, ये अमाउंट दिया है. अब यहाँ पे CAGR बोला है और ये मिड सेमेस्टर 23 का ही है, राइट? और दिस क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन्ड इन BA02 ऑल्सो. तो तुम्हें क्या करना है, लास्ट अमाउंट डिवाइड बाय द फर्स्ट अमाउंट and raise to 1 upon the number of years -1. यानी ज्योमेट्रिक मीन का इतना फॉर्मूला है. जैसे अगर इधर तुम करोगे ये वाले में, तो क्या करना है, लास्ट अमाउंट क्या है 25,447. तो 25,447 ब्रैकेट में लोगे तुम लोग, ब्रैकेट में इन द कैलकुलेटर 25,447 डिवाइड बाय 15,000, ब्रैकेट क्लोज करोगे, ब्रैकेट क्लोज कर, राइट? ब्रैकेट क्लोज करके पावर में लास्ट ईयर क्या है 10, 10 माइनस द फर्स्ट अमाउंट इज 0, तो 10 माइनस 0 इज 10. तो 1 अपॉन 10 यानी 25,447 डिवाइड बाय 15,000 होल रेज टू 1/10. जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है ये, यहाँ पे क्या था 4 था और 1 था, तो 4 minus 1 is 3. तो यहाँ तो पे sir when we are saying कि final value divided by first value raised to 1 upon 4, because there are 4 this thing, right, in that 10, question. 10 No, minus here it is 10, but in that question it is 4, right? 4, no, don't take 4. Okay, so we'll take 10. 4 minus the first value is 1, so 4 minus 1 is 3. Okay, so sir Versus Yes, Karthik. like, सर 1/1 T लिखा था, तो वो हमने 4 - 1 कैसे किया, मतलब मुझे नहीं समझा. कौन सा वैल्यू लिया, 95.87 लिया. हाँ, लास्ट वाला. This is the last value, this is the first value. हम्म. तो जो लास्ट वैल्यू लिया उसके बाजू में ईयर क्या लिखा है, 4th. और फर्स्ट वैल्यू लिया उसके बाजू में क्या लिखा है, उन दोनों का डिफरेंस लेना है. ओके. और इसी में पूरा CAGR आ जाएगा, मतलब हमने जो पिछले वाले का किया उसमें सारे करके CAGR नहीं आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आएगा, फिर उसमें से 1 माइनस करोगे, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो CAGR आएगा. ओके, बट ये शॉर्टकट वाला मेथड है थोड़ा, जो पूरा. यस, ओके. दिस इज शॉर्टकट मेथड. तो इसका करके देखो, आंसर सेम ही आएगा. करो, कोई करो, 25,447 डिवाइड बाय 15,000 and whole raised to 1 upon 10. Yes, बुद्धिमत्ता. तो सर बेसिकली टी जो रहेगा, जितने साल का ग्रोथ फैक्टर ओरिजिनली निकालते हैं, मतलब अभी 4 साल है तो 3 साल का ही ग्रोथ फैक्टर निकलेगा, तो वी कैन कंसीडर दैट 3 years एज नहीं, वैसा मत देखो. सिंपल है कि लास्ट ईयर लास्ट अमाउंट के सामने जो भी नंबर लिखा है, चाहे वो 2022, 23, 24 भी लिखा है, तो भी वो रूल अप्लाई कर सकते हो. जो भी नंबर यहाँ पे है ईयर में, उसमें से जो भी फर्स्ट अमाउंट लिया वहां पे जो भी नंबर है वो माइनस करो. सिंपल. तो रॉन्ग होगा ही नहीं. बाकी सब कॉन्सेप्ट से रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है.
सो Sir, सर फॉर I- एग्जांपल 10 और 2 के बीच में ले रहे हैं तो टी वो 8 हो जाएगा बराबर Yes, ना? 8. अगर Okay. you are taking 25,447 and you are taking 17,174, अगर ये 0 और 1 दिया ही नहीं है, खाली ये दिया है, तो 10 minus 2, you will take 1/8. Right? सर Yes. ये जो ग्रोथ फैक्टर है, तो ग्रोथ फैक्टर खाली आपने एक पर्टिकुलर वो तो शॉर्टकट वे में निकाला है, पर अगर हमें पूरा मतलब टेबल में तो हमें मतलब एग्जाम में तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा ना, पर ईयर का सबका। नहीं, CAGR पूछा है तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो ना। सीएजीआर तो ग्रोथ 1 माइनस द ग्रोथ रेट जो आएगा उससे ही करते हैं ना। ऐसे भी कर सकते हो अगर अमाउंट में दिया है। ओके, ये मैंने बोला देयर आर 2 मेथड्स। नहीं तो फिर अगर मतलब अभी डायरेक्टली सीएजीआर पूछा है, पर अगर समझो ये अमाउंट्स दिए और ग्रोथ रेट और फिर ज्योमेट्रिक मीन ढूंढना है, तो हाँ, पूरा ऐसे ग्रोथ अगर रेट तुम्हें निकालना ये पड़ेगा ना हमें। हाँ, ये वर्ड रहेगा या फाइंड ओके, ज्योमेट्रिक मीन या यूज, तो ये वाला ज्योमेट्रिक मीन वाला या ऐसा कुछ वर्ड है तो फिर जो मैंने सॉल्व किया है वैसे करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओके। तो होल मेथड ये वाला। सो सर पहले लेकिन वाला का 5.4% आया, क्या पहले वाले का रिटर्न 5.4% आया। 5.2%, 5.4। इधर तो 4.53 आ रहा है। सो कैलकुलेटर में अलग आ रहा है सर, हाँ? 5.4 ही आ रहा है। हाँ, सर। 5.4 आ रहा सेकंड है। मेथड से कर रहे हैं तो तो मेरा इसमें तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना, ये भी कैलकुलेट करके देख लो। कर लिया सर, मतलब मोस्ट ऑफ सेम ही है, सिर्फ पॉइंट्स में कहीं डिफरेंस आ रहा है तो 5.4 के अलावा 5.3 या 5.7 आ रहा है, बट नहीं, सेम बाय दिस आंसर। मेथड कितना आ रहा है, ये सॉल्व करोगे तो हो सकता है मैंने तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है। Sir, mine is coming 1.055. नहीं नहीं नहीं, ये और देखो एक और क्या है पता है, अब यहाँ पे ना इतना डिफरेंस तो नहीं आएगा कि 4.5 एंड 5.4 तो बहुत डिफरेंस हो गया, क्योंकि ये 2 डेसिमल तक लिया है आंसर। ये डिवाइड करोगे तो 1.07 नहीं आता है, कुछ और आएगा 06 समथिंग, सबका ऐसे अलग आता है। But जब हम- sir, growth factor का formula is 1 plus R upon 100, right, sir? Yeah, that is when the percentage is given. जब इस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा, ये वाला, जब परसेंटेज में दिया है तो Hmm. इसमें परसेंटेज थोड़ी दिया है, आर इज नॉट गिवन, अमाउंट इज गिवन। Hmm. Okay, sir. सर एक सर क्वेश्चन है। सेकंड वाले का मैच हो गया, क्या? सेकंड वाले का मैच कर रहा है। हाँ, सेकंड वाले का कर रहे हैं ना, तो मेरा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बिकॉज मैंने बोला मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, तो हो सकता है आई माइट हैव डन कैलकुलेशन मिस्टेक व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस। ये सब मैंने क्या वो नॉर्मल जो मोबाइल में कैलकुलेटर होता है उससे किया है। तो ये एक बार कैलकुलेशन देख लेना, या कोई अमाउंट रॉन्ग कॉपी किया होगा तो आई डोंट नो। सर दोनों सर एक मैच क्वेश्चन होगा ही है, होगा। आपने 22 क्या बोल रहे हो? सर दोनों मेथड्स में वैल्यूज मैच करेगा ही करेगा, जीएम वाला हाँ, जो है। करेगा ही करेगा, वो तो करेगा। मेरा मैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, या मैंने कोई नंबर यहाँ पे रॉन्ग कॉपी कर लिया होगा, एक बार तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना। वो अभी इसमें 4.53 है, तो वो 4.48 4.58 थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ऐसा नहीं कि 4 से कम या 5 से ज्यादा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। इसमें 8.5 है तो 8.48 8.52 8.55 थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है दोनों मेथड में, बट यू कैन फॉलो दिस शॉर्टकट मेथड ओनली। यस कार्तिक। सर आपने इसके पहले किसी ने पूछा था कि ज्योमेट्रिक मीन बोला होगा तो वही मेथड यूज करना पड़ेगा, लेंथी वाला, लेकिन उसमें भी अगर हम CAGR का फॉर्मूला निकाले और बेसिकली -1 नहीं करे तो ज्योमेट्रिक मीन ही आ जाता है ना। यस, तो वो फॉर्मूला निकाल के भी लाइक लेंथी मेथड करने की एक्चुअली अब जरूरत ही नहीं है ना, अगर डिपेंड ऑन योर डिवीजन में क्या सिखाया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर 15-20 मार्क्स का डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि देखो ये CEC में ना एक्चुअली ना उन लोगों ने क्या लिखा है, इसमें सब लॉन्ग कट मेथड है और उन्होंने ऊपर भी पूरा दिया है, गिविंग ऑल द फॉर्मूला यूज्ड, शोइंग ऑल द स्टेप्स। इसमें अगर डायरेक्टली कर दोगे, अगर पेपर में ऐसे लिखा है और डायरेक्टली करोगे तो मार्क्स फुल नहीं भी दे सकते हैं, राइट।
ओके सो बेसिकली अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो बहुत सारे कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो सकती है, तो टू जस्ट मेक श्योर कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं, हाँ, you can just वाला verify method- with the second method. Yes, yes. ठीक है सर। तो इसीलिए मैंने भी लॉन्ग कट मेथड से ही सॉल्व किया, मुझे भी टाइम लगा बट शॉर्टकट से तो मैं बोला कोई भी आ जाएगा किसी को भी ना, लॉन्ग कट से ही मेन है सीखना, शॉर्टकट मेथड इज तो वेरी सिंपल। यस बुद्धिवंता। सर वो सर- सॉल्व किया मैंने, सो सर वो 1.0453 नहीं है, 1.0553 है। हाँ तो मैंने वही रॉन्ग लिख दिया इसीलिए। हाँ मैच हो गया सर अभी। हाँ तो मेरा मिस्टेक है। 5.52 ऐसा आंसर है उसका। हाँ, 5.22 तो वो मैंने भी मेरा solve किया। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, दिस इज 1.0553। यस मैंने इसको 453 लिखा है, इसको कैलकुलेट करोगे तो मैंने बोला ना क्योंकि कैलकुलेटर नहीं था और ये बहुत टाइम में अभी बनाया, पीडीएफ तो जस्ट 10 मिनट पहले ही बनाया तुम लोग के लेक्चर के, राइट। सो इसीलिए ठीक है, मिस्टेक होता है, देखो मुझसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक, प्रैक्टिस करो। अब ये 553 है तो 5.53 करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। आई विल चेंज एंड आई विल सी इफ द पीडीएफ कैन बी चेंज, बट लेक्चर में तो मैंने बोल दिया है, तो ये पीडीएफ एक बार तो मैं डाल दूंगा लेक्चर के बाद, क्योंकि कल ही टाइम मिलेगा चेंज करने का, ठीक है। क्लियर, तो ये तो सबको क्लियर है ना। तो ये तो तुम लोग देख लो, उसके अलावा ये फाइल नंबर 02 में जितने भी क्वेश्चन है ये सारे मैंने एक्सप्लेन किए, ये तुम लोग देख लोगे। प्लस ये फाइल नंबर 05 में ये मैंने सीजीपीए वाले क्वेश्चन किए हैं और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं मिड सेम 23 का, और ये जो 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेन, 2 क्वेश्चन स्पेशली ये भी तुम लोग देख के जाओगे, ये भी यही टॉपिक का है, राइट। एंड इसके अलावा अगर स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये सीईसी में तो आया नहीं है, इन दिस डिवीजन स्केल ऑफ मेजरमेंट से कुछ भी नहीं पूछा था। अगर तुम लोगों को बोला है कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पे भी कुछ आने वाला है, तो जो फर्स्ट लेक्चर है वो सुनने के बाद इसमें खाली आएगा तो क्या इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई करना कि वो नॉमिनल है कि ऑर्डिनल है कि इंटरवल है कि रेशियो है ना। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो में आइडेंटिफाई करना, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसको आइडेंटिफाई करना, या एक केस स्टडी दिया होगा, इसमें 23 के पेपर में है क्या, तो मैं एक डिस्कस कर लेता हूँ। Sir, we are told कि we'll be getting one case study. In that we have to tell us कि which type of estimate is ordinal, nominal. वही मैं देख रहा हूँ कि इसमें है क्या। इसमें एक 22 या 23 में भी आया था केस स्टडी, राइट। सर हमारे सीईसी में मेजरमेंट का, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का भी पोर्शन है, इट हैज बीन सेट बाय द प्रोफेसर। अच्छा, वो है तुम्हारे पास क्वेश्चन, तो वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन आल्सो। और शिखा भी कुछ भेजने वाली थी ना एक क्वेश्चन। हाँ भेज रही हूँ मैं। देखो ये रहा, अभी ये केस स्टडी है, देखो ये भी आया था मिड सेमेस्टर में। इधर क्या लिखा है कि देखो, बुक माई शो इज इंडिया ऑनलाइन मूवी एंड इवेंट्स टिकटिंग ब्रांड, है ना। अब यस, एनी डाउट कार्तिक, यू हैव रेज्ड हैंड। हाँ सर, मैंने ना स्टार्टिंग में मैथ्स के टॉपिक्स लिखे थे ना, तो उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन था। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि ये सीईसी में वो नहीं आने वाला ना, पीएनसी। नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तो मेरे पास कुछ डेटा है भी नहीं एक्चुअली। ओके, तो प्रोबेबिलिटी आ रहा है राइट, मार्जिनल जॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, और फिर अगर सीईसी में है क्या पूछ लो, वो भी मैंने सिखा दिया है वैसे, बट ये बी डिवीजन में तो खाली देखो सेंट्रल टेंडेंसी ही था। तो नहीं, हमें है प्रोबेबिलिटी, मतलब एच डिवीजन पे। नहीं परम्यूटेशन है क्या? परम्यूटेशन नहीं सिखाया अभी तक शायद से कोई भी क्लास में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था इसलिए मुझे इश्यू था कि वो इंडक्शंस के टाइम पे बस एक सिनॉप्सिस दिया तो था। है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है, जब मेन सिलेबस में कहाँ है। इंडक्शन के टाइम पे लिखा था इसलिए याद मैं। नहीं आ रहा है। इंडक्शन के टाइम पे सर मतलब ऐसा था ना कि सब थोड़ा थोड़ा बेसिक्स सिखा रहे थे, वो तो इंडक्शन के टाइम पे पीएनसी सिखाया था, ओके, तो वो अभी सिलेबस में नहीं है हमारे। ठीक है। क्योंकि मुझे भी याद नहीं, मैंने 4 साल में तो सिखाया नहीं कभी। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि दिस इज द केस स्टडी कि
पहले उसके पहले ना तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है, राइट, है ना, कि नॉमिनल ऑर्डिनल क्या होता है, पहले वो पता है कि नहीं पता है। ब्रीफ में मैं नहीं। बताता हूँ खाली एक एक लाइन में। ये तो डिटेल लेक्चर तो सुन लेना जो मैंने BA 01 में एक्सप्लेन किया है। नॉमिनल लेवल और ऑर्डिनल लेवल ना नॉन न्यूमरिक होता है, मतलब जो कोई एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरवल और रेशियो कोई नंबर्स को। बट नॉमिनल और ऑर्डिनल में नंबर हो सकते हैं, बट नंबर डज नॉट मीन कि हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ कोई एट्रीब्यूट के लिए हम ये करते हैं। जैसे नॉमिनल में क्या याद रखना है, क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन, ग्रुपिंग। हम एक ग्रुप ऑफ डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम वेरिएबल। लाइक तुम लोग सेम 1 के हो, दूसरे सेम 3 के है, तो IBS के स्टूडेंट है, बट आई विल क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सेम 1 सेम 3। देन आई विल क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स ऑल्सो ना। अभी ड्राइव में मैंने अलग अलग फोल्डर बनाया ना, तो क्लासिफाई कि BA को मैं 1 नंबर दे सकता हूँ, तो उसको 2 दे सकता हूँ, इकोनॉमिक्स को, देन अकाउंट्स को 3, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 4, और लाइक दैट। सो ओनली क्लासिफिकेशन, that is your nominal. Classification plus ranking. Classification plus ranking. और order. Classification तो है, plus order also matters. कि 1 is superior than 2. or 2 is superior than 3. If number have a meaning, classification के अलावा, then that is ordinal. Only classification nominal, classification plus order or rank, that is ordinal. But here also we cannot subtract, right? Here 100 मीटर में कोई first आया, कोई second आया, तो जो first आया का rank है, मतलब he is superior than the second one. But here doctor और उसके लिए हम लोग ने एक example लिया था कि educator के लिए 1, factory worker के लिए 2, lawyer के लिए 3, यहाँ random numbers है। तो यहाँ पे ये मीनिंग नहीं कि एजुकेटर इज सुपीरियर देन द अदर्स एंड वाइस वर्सा। और यहाँ पे नॉमिनल और ऑर्डिनल ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया। फिर इंटरवल और रेशियो, यहाँ पे दोनों न्यूमरिक थे, बट इंटरवल क्या है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मीनिंग तो है, बट एक ही डिफरेंस है बिटवीन इंटरवल एंड रेशियो, जो 0 है, 0। यहाँ पे जो 0 है उसका 0 मीनिंग नहीं होता है। इन इंटरवल द 0 पॉइंट डज नॉट मीन द ट्रू 0, द नेचुरल 0, बट इन रेशियो 0 मीन 0, एब्सेंस ऑफ समथिंग। रेशियो में 0 का मीनिंग 0 ही होता है, यहाँ पे 0 का मीनिंग 0 नहीं होता है। जैसे टेम्परेचर हो गया, तो 0 डिग्री टेम्परेचर मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि टेम्परेचर है ही नहीं, माइनस में भी हो सकता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि टेम्परेचर नहीं है, राइट, है ना। बट हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट, तुम बोलोगे 0, तो मतलब मार्क्स मिला ही नहीं तुम्हें। So, sir, in interval, we can say the 0 point is not counted. No, 0 does not have a meaning of 0. 0 का भी 0 मतलब not the absence of something. It just means it is a other number जिसका भी कुछ मीनिंग है। 0 का भी कुछ मीनिंग है यहाँ पे, इसमें 0 का मीनिंग 0 ही है रेशियो में, ठीक है। No, sir, I'm talking about interval. Ratio, I know it will be 0 only. But in interval, 0 point is what exactly? Here 0 temperature means what? 0 degree temperature means what? So that 0 degree temperature. is temperature. That means the temperature is very cool. Right. नेगेटिव भी हो सकता है टेम्परेचर। तो 0 डिग्री का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर इज एब्सेंट, इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल व्हाट विल 0 मीन। रिगार्डिंग द टेम्परेचर इट मींस कि इट इज वेरी कोल्ड वेदर देयर। Yes, Right, so sir. But what should I say it over here? 0 point does not. What else can I say? Like, that will I depend on understood the the example. I don't know. अभी तो टेम्परेचर का ही है, we will discuss, नीचे और भी है, ठीक है। Okay. Yes, Bodhi Menta.
So, sir, interval can take a negative value and ratio can't take a negative value, right? नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, ये इसके बेसिस पे नहीं क्लासिफाई करना है. टेम्परेचर के लिए मैंने बोला नेगेटिव हो सकता है, ये But डिफरेंशिएट इसमें हम नहीं negative करना है. नहीं ले सकते, एक ही right? डिफरेंशिएट याद रखना है कि जीरो does not mean zero in interval. Zero does not mean absence, and in ratio zero means actual zero. Zero means absence of that thing जिसका भी हम बात कर रहे हैं. सो सिर्फ लाइक फॉर इसके basis एग्जांपल पे. सर हम बोले कि 0 एम्प्लॉइज है तो वो 0 ही होगा क्योंकि हाँ, मतलब एम्प्लॉय नहीं है, एब्सेंस है ऑफ ही नहीं मतलब क्योंकि Right. टेम्परेचर में 0 टेम्परेचर भी लाइक कूल टेम्परेचर होता है वैसे यस लॉजिकली वैसे. यस. तो यही वो नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट सब पे होल्ड नहीं करेगा, मतलब दैट नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट विल नॉट अप्लाई ऑन ऑल द वेरिएबल्स. तो वो वाला याद नहीं रखना है, राइट. अब यहाँ पे देखो एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं विच विल हेल्प यू अगर आता है तो ऐसे. और ये कुछ हार्ड नहीं है, तुम लोगों को ना बहुत इजी है, बड़ा दिखेगा ये बट ये इजी है. तुम लोगों को खाली ये देखना है यहाँ पे क्या क्या दिया है इसमें. इंडिया बिगेस्ट ऑनलाइन मूवी एंड इवेंट टिकटिंग ब्रांड बुक माई शो, ये तो सबको पता ही है. द वेबसाइट caters to ticket sales of ticket for different events such as movies, plays, concerts and sporting tournaments via the online platform. Launched in 2007, it is headquartered in Mumbai, Maharashtra. Since then, it has garnered 30 million plus customers. तो ये एक नंबर है पहले 30 मिलियन. ये क्या है? नंबर ऑफ कस्टमर्स. नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या हो सकता है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल. Sir, ratio. रेशियो, बिकॉज नंबर ऑफ कस्टमर्स 0 हो सकता है तो उसका मतलब कस्टमर्स नहीं है. तो एक तो ये भी है. हैज इट्स प्रेजेंस इन 5 डिफरेंट कंट्रीज. तो नंबर ऑफ कंट्रीज है इंडिया, यूएई, इंडोनेशिया, श्रीलंका and 650 plus Indian cities such as Mumbai, Delhi, Hyderabad, Bangalore. Each of its customer gets profile based on its viewership and usage. Customer का viewership और usage के हिसाब से भी उसको recommendation और profile मिलता है. Book My Show is able to get details of many aspects of individuals just through their order history. They get information कि कौन से type of movie, कॉमेडी, थ्रिलर. तो ये कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन, रोमांटिक ये क्या है? Nominal. दिस इज नॉमिनल. दिस इज क्लासिफिकेशन. हम मूवीज को क्लासिफाई कर रहे हैं कॉमेडी में, थ्रिलर में, एक्शन में, रोमांटिक में. और यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि कॉमेडी मूवी आर बेटर देन थ्रिलर और थ्रिलर आर बेटर देन कॉमेडी. इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल चॉइस. So here order or rank is not important, only classification. So this is your nominal. So they can understand the name of the movie watched by an individual. Zara hatke, zara bachke, 7.5. This is rating. Insidious 6.3. Satya Prem Ki Katha 7.9. The values mentioned against the movie names are rating. Rating यानी अब यहाँ पे 7.9 मतलब इसकी रेटिंग Ordinal. पता है तो ये ऑर्डिनल. ऑन अ स्केल, तो कोई भी स्केल होता है वो ऑर्डिनली होता है. ऑर्डर हिस्ट्री ऑल्सो रिवील्स टाइम ऑफ द डे, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट. तो ये भी इसके बेसिस पे भी क्लासिफाई करेंगे ऑन द टाइम ऑफ द डे. तो हम लोग ग्रुप बनाएंगे कि कौन मॉर्निंग में देखता है, कौन नून में देखता है, कौन इवनिंग में, कौन नाइट में. तो ये भी तुम्हारा नॉमिनल डेटा हो जाता है. देन लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है. देन अमाउंट ऑफ मनी तो हम लोग रेशियो बोलेंगे. तो आइडेंटिफाई 5 वेरिएबल्स बोला है एंड मेंशन देयर स्केल ऑफ मेजरमेंट. 10 मार्क्स का ही है. कोई भी 5 वेरिएबल. तो यहाँ पे मूवी जनरी नॉमिनल है ना. मूवी जनरी यानी ये जो हमने बोला यहाँ पे. देन मूवी नेम वो भी नॉमिनल है. मूवी का रेटिंग वो इंटरवल है. आई सेड ऑर्डिनल ना, बट मूवी रेटिंग को तो मैंने ऑर्डिनल बोला ना. तो हमने इंटरवल दिया है. स्पेंड ऑन द मूवी तो रेशियो है. नंबर ऑफ टिकट्स रेशियो है. टाइम ऑफ द वे नॉमिनल. लैंग्वेज नॉमिनल. कस्टमर प्रोफाइल नॉमिनल. ये सब तो राइट है.
कोई भी 5 ही लिखना था, बट मूवी रेटिंग क्योंकि ये इंटरवल क्यों दिया है, बिकॉज मैं तो जो भी स्केल होता है ना, स्केल पे हम मेजर करते हैं उसको आई टेक इन ऑर्डिनल. दिस आई विल हैव टू अगेन सी reconfirm from other textbook also. एक बार ये देख लेना, क्योंकि ये IBST सर ने दिया है तो ये इंटरवल भी हो सकता है. आनंद देसाई सर है किसी को भी, तो दिस आई विल हैव टू कंफर्म, मे बी आई माइट बी रॉन्ग. यस यस कार्तिक. या सर वो इंटरवल ही होगा ना, बिकॉज व्हेन वी टॉक्ड अबाउट टेम्परेचर, अगर जीरो आल्सो मीन समथिंग, सो मूवी रेटिंग में भी जीरो का मतलब भी एक मीनिंग है. जीरो का मतलब तो फिर जीरो ही होता है ना, मतलब उसकी रेटिंग है ही नहीं. इट डज मीन ना कि रेटिंग है, मतलब इट्स एकदम घटिया मूवी रेटिंग है. हाँ हाँ. रेटिंग तो दिया है, बट सबने जीरो दिया है. ठीक है. यस आयुष एंड बोधिमंता, तुम लोग को भी कुछ डाउट था? आयुष Yes, sir, sir, what- that only he said. क्या बोल रहे हो? सर वही जो Except पॉइंट out- बोला था उसने वही कवर कर लिया. हाँ, ठीक है. इसमें हम लोग मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, इसीलिए ये इंटरवल है. ठीक है. मूवी रेटिंग को इंटरवल लो. आई विल ऑल्सो कंफर्म लेटर आफ्टर 11. आई विल रिसर्च ऑन इट क्या है ये. ठीक है. क्योंकि मेरे माइंड में इसको ऑर्डिनल था, बट आई विल ऑल्सो, मेरा माइंड भी मुझे चेंज करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो इट्स नॉट नेसेसरी, कभी कभी मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, बट आई विल जस्ट कंफर्म द ट्रूथ. ठीक है. आफ्टर 11. बट अभी इंटरवल ही पकड़ो, तो ऐसे ही केस स्टडी आएगा. और ऐसे नहीं है कि तुम्हें सारे वेरिएबल आइडेंटिफाई करने हैं, एनी 5 ऐसे कुछ भी बोलेंगे, राइट. एक और ऐसी केस स्टडी था, अगर तुम लोगों को डिस्कस करना है ना, तो वन मोर केस स्टडी इन 22 में भी आया होगा. So where are the questions in that case study? Can you just show? This is of solution. This file ना I have uploaded in the drive ना. ये अच्छा. फाइल है ना जो BA Midsem 23 answers Hmm. in this file, and this is 2022. This is 2022 mid semester paper. इसका solution नहीं है. I will have to prepare the solution of this. But इसमें भी कोई होगा केस स्टडी, तो I will just check. सर वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, वो आपने ब्रैकेट में साइड में लिखा था उस इसमें. हाँ, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. That scale of measurement with appropriate reasoning, ये रीजन के लिए लिखा है. नॉमिनल में तुम्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही लिखोगे. ठीक है. रेशियो में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लिखोगे, इंटरवल में मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना. मतलब इनसे ये सब निकल सकता है, वही ऐसा ना मतलब. यस यस यस. ओके. अब देखो इसमें भी एक केस स्टडी होगा, तो ये तुम लोग भी कर सकते हो. वी कैन डिस्कस हियर. है क्या? जस्ट अ सेकंड. हाँ ये रहा, देखो 10 मार्क्स का. ये एनी डाउट? ये तो बहुत छोटा सा है, बट इसमें भी हम ट्राई करते हैं. यस बोधिमंता. सर वो एक बार पीडीएफ खोलेंगे, वो जो यहाँ पर ये था. सर यहाँ पे सारे के डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, तो ऑर्डिनल के क्या हो सकता है? ऑर्डिनल के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस रैंक और ऑर्डर. फ्रीक्वेंसी नॉमिनल पे अप्लाई होगा, वो तो सब पे अप्लाई होता है. फ्रीक्वेंसी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो सब पे अप्लाई होगा. अब ऑर्डिनल पे फ्रीक्वेंसी के अलावा ऑर्डर और रैंक, रैंकिंग और ऑर्डर यू कैन राइट. राइट. सॉरी वापस एक बार रिपीट करें, क्या बोला आपने? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंक. रैंक ओके. रैंक की जगह ऑर्डर, ORDER वर्ड भी यूज कर सकते हो. फॉर ऑर्डिनल, फॉर इंटरवल दिस एंड फॉर रेशियो. ठीक है. एक और सर एक चीज पूछना था, एक वेरिएबल के 2 स्केल ऑफ मेजरमेंट हो सकता है? नहीं, दो नहीं हो सकते. ओके. अब ये वाला तुम लोग देखो डिस्कस, ये तो बहुत छोटा सा है. तुम लोग लिखो, फिर हम डिस्कस करते हैं सबने क्या क्या लिखा है. मैं रीड करता हूँ और तुम लोग जो जो आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, सब लोग लिखो. रॉन्ग राइट फाइन, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है इसका आंसर. आई विल ऑल्सो explain with my knowledge. The number of NPAs recorded per week in the past in the NBA. नहीं, ये नहीं है. ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9. 9 किधर है? 9 पीछे है क्या? हाँ ये रहा, ये है.
स्विगी इज एन इंडियन ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी. देखो जो भी केस स्टडी आया है ना वो कहाँ से आ रहा है, स्विगी, बुक माई शो, तो ये सब पे ही आ रहा है. तो यहाँ पे भी वही है, स्विगी इज एन इंडियन ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म founded in July 2014. Swiggy is based in Bangalore and operates in many Indian cities. The app has a 4.6 star rating on both iOS and Android. अब ये ऐप रेटिंग को तुम इंटरवल ले सकते हो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, राइट. स्विगी इज द टॉप रेटेड मोबाइल ऐप. बाकी मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग आइडेंटिफाई करोगे. टॉप रेटेड मोबाइल ऐप बेस्ड इन बेंगलुरु, India, with close to 15 lakh, 1.5 million downloads in the Google Play Store. Out of the top 10 food tech firms, Swiggy is ranked 2 in India. ये रैंक भी है इधर. Its dashboard view allows the customer to choose between its 5 main delivery business. ये उसकी delivery business है 5. Food, Instamart, Jenny, meat delivery, specialty stores. If you choose food, you can search for your favorite food items or restaurants. Suppose you type burgers, then it will return series of restaurant options who offer burgers. Few key parameters listed just below the name of restaurant in the search results are delivery time, popularity, which is defined by restaurant star ratings given by customers. What type of cuisine does the restaurant offers? Indian, fast food oriented. The first search result is McDonald's. Once you click on it, you have an option of filtering the menu as veg and non-veg. तो इतना तो पहले देख लो इसमें से क्या क्या मिल रहा है तुम लोगों को. इसका क्वेश्चन आगे का मैं रीड कर लेता हूँ, वो यहाँ पे है, पूरा ये ऊपर नीचे है. Few restaurants are partnered with Swiggy to promote themselves. The partner restaurants have ad written below their names. These restaurants who are not their partners do not have ad written before their names. Swiggy spent rupees 1.63 to earn a single rupee of revenue during the fiscal year ending in March 21. Identify any 5 variables mentioned, है ना? Identify their scale of measurement. तो वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है. तो इसमें ऐसा भी नहीं है, चलो तुम लोग में कोई भी 3-4 तो राइट कर ही लो. 10 में से 6-8 मार्क्स तो कोई भी ले आएगा, 6 मार्क्स तो किसी को भी आ ही जाएगा, क्योंकि रेशियो, नॉमिनल, नॉर्मल भी होते हैं. एक आधा रॉन्ग हो सकता है कि तुम लोग ने आइडेंटिफाई रॉन्ग किया, और वो भी तुम लोग मेरा लेक्चर भी सुनो और इसमें अभी बताओ क्या क्या तुम लोग ने आइडेंटिफाई किया. ऑर्डिनल, इंटरवल एंड नॉमिनल. हाँ ये 3 डिलीवरी बिजनेस जो है, डिलीवरी बिजनेस इज So it will be ordinal, interval ये and डिलीवरी nominal. बिजनेस जो है ना, डिलीवरी बिजनेस 1 2 3 4 5, दिस इज नॉमिनल. या Nominal. But sir, any 5 we have to name, right? So I just said the nominal, interval and ordinal. Yes. I think you can add nominal again अगर एक और एग्जांपल Right. का है नीचे. Types of cuisine can also be nominal, na? क्या? Types So sir, of we have to cuisine. write. cuisine So we is can- also nominal. Yes. Take them at a time, one at a time, please. So type of cuisines mentioned, Indian, fast food, oriental, this Yes. is also nominal. Yeah, that can also Yes, be that is nominal. also nominal, and veg and non-veg. Then that is also nominal. So sir, we can say 3 nominal, 1 ordinal and 1 interval. Yes, and there is this rating जो है ना, वो तो हो जाएगा तुम्हारा इंटरवल, राइट. प्लस ये जो नंबर्स है डाउनलोड्स, दैट विल बी रेशियो, प्लस दिस टॉप 10 फूड टेक्नर्स का रैंक 2 है, दिस विल आल्सो बी योर ऑर्डिनल, राइट. रैंक, सर Yes. क्वेश्चन है द रैंक ऑफ स्विगी इज But that will be interval, sir, no? सर रेटिंग में तो हम ये रैंकिंग भी आ रेटिंग गया. में इंटरवल है, रैंक में ऑर्डिनली लेना है. दिस इज रैंक, दिस इज नॉट रेटिंग. So sir, but we have to say any 5, no? So it can be. लेकिन मैं सब डिस्कस कर रहा हूँ. आई एम डिस्कसिंग ऑल. But sir, if we- First let sir complete what he's trying to say. Okay. यस, तो एक बार सुन लो, फिर एक एक बोलो, मैं नाम से बोलता हूँ, रेस एंड करो. सी व्हाट आई एम सेइंग इज कि रेटिंग जो है वो इंटरवल लेना है, राइट. जो अभी हमने प्रीवियस पेपर में भी देखा,
लेकिन दिस रैंक 2, इट इज रैंक 2 इन इंडिया जो है, रैंक जो है, रैंकिंग विल ऑलवेज बी ऑर्डिनल ओनली, रैंकिंग विल ऑलवेज बी ऑर्डिनल, ठीक है। तो रैंक ऑर्डिनल लेना है, रेटिंग को इंटरवल लेना है, और ये जो 15 लाख डाउनलोड्स है, नंबर ऑफ डाउनलोड्स, दैट इज रेशियो, दिस जो बिजनेस है, डिलीवरी बिजनेस, दिस इज योर नॉमिनल। एंड सपोज हम लोग ये जो है फास्ट फूड ओरिएंटल, दैट इज टाइप ऑफ cuisine, this is also nominal, and veg non-veg is also nominal. And apart from that, here जो ऊपर और है, यहाँ पे क्या दिया था, स्विगी स्पेंड, तो दिस इज रेशियो, हाउ मच स्विगी इज स्पेंडिंग, एंड दिस एड एंड नॉट एड। देखो तुम लोग भी जब ऑर्डर करते हो स्विगी से ना, तो कहीं कहीं एड लिखा होता है और कहीं कहीं ऐड नहीं होता है। जिनका ऐड लिखा होता है मतलब स्विगी ने उन लोगों से पैसा लिया है, तो स्विगी उनको प्रेफरेंस दे रहा है, क्लासिफाई कर रहा है ऐड और नॉन ऐड के बीच में, प्लस ऐड को वो ज्यादा प्रमोट करता है। अब इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझे नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों लग रहा है, बट कोई तो एक ही है, क्योंकि ऐड नॉन ऐड क्लासिफिकेशन तो है, बट आई हैव अप्लाइड द कॉन्सेप्ट कि ऐड वालों को वो ज्यादा प्रमोट करेगा ना, ऐड वाले ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि वो लोग पैसा दे रहे हैं स्विगी को रेदर देन नॉन ऐड। बट इसको नॉमिनली लो, बट मेरे माइंड में ऑर्डिनल भी आ रहा है, कंसिडरिंग कि ऐड इज मोर सुपीरियर देन दोस हैव नॉट गिवन मनी एंड दोस हु हैव नॉट एडवर्टाइज्ड, राइट। ये सारे इसमें है। यस, अभी रेस हैंड करो तो आई विल। यस बोधिमंता। सर एड का जो है, मतलब अगर कोई 1 करोड़ दे रहा है, कोई 50 लाख दे रहा है, बट ऐसा तो नहीं होगा कि फर्स्ट वाले ऐड को ही ज्यादा दिखाएंगे, मतलब दोनों इक्वल दिखाएंगे, राइट? डिपेंड, वो भी उनका क्या स्कीम है वो तो हमें मालूम नहीं, बट जो ज्यादा दे रहे हैं उनका तो ज्यादा बार आएगा ना, कुछ तो उनका रहेगा ना, बिकॉज तो डिफरेंस तो रहेगा। ही लग रहा है मेरे को, ऑर्डिनल आई डोंट। हाँ तो नॉमिनली लो, मुझे भी ज्यादा तो नॉमिनली लग रहा है। यस कार्तिक। सर रेटिंग में सिर्फ स्विगी का दिया है, तो हमने रेटिंग का लिया था, आई थिंक इंटरवल लिया था ना। यस हाँ, लेकिन अगर ऐसे दो के बीच में सब समझो कि स्विगी 4.6 है और जोमेटो 4.0 है, तो फिर वो ऑर्डिनल हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें रैंकिंग ही हो गया, इवन दो रेटिंग है। रेटिंग तो है, बट रैंक इज नॉट इम्पोर्टेंट। रैंक तो अलग फूड टेक फर्म्स का दिया है, रेटिंग को इंटरवल ही लो। अगर 2 का भी दिया है तो ठीक है कि दैट रेटिंग इज बेटर देन दैट, वो इंटरवल में हो सकता है, बट इसको फिर मत लो, ये मत लो, ऑर्डिनल मत लो। ठीक है, रेटिंग को इंटरवल ही लो। If any change, I will inform in the group, right? Once I will refer other book. Yes, there is. Sir, so there will be 3 nominal, 1 ratio and 1 interval, right, sir? नहीं, रेशियो तो एक से ज्यादा है, नंबर ऑफ डाउनलोड्स देन मनी स्पेंट by the Swiggy. Sir, there will be then many many answers will be there, right, sir? Yeah, many Because answers. You have to write any 5 only. ज्यादा तुम्हें मिल रहा है तो you can write more also. 5 यार अच्छा। मिनिमम, मतलब 5 करेक्ट लिखोगे तो 10 मार्क्स मिलेगा। अगर अच्छा, 7 तो we just identify कर रहे हो, if you are able to identify 7, then you can write 7 also. Achha. Okay, sir. And sir, so we just write as like 2 ratio, 2 nominal, like that we have to write, right, sir? No. You have to So write how- like this. If variable how, you sir? have to write, then you have to write this. Acha, movies, acha, okay, like this you have to write. Okay. क्लियर है ना? तो देखो हमने सेंट्रल टेंडेंसी और स्केल ऑफ मेजरमेंट रिवाइज कर लिया है, और प्रोबेबिलिटी के तो 2 लेक्चर अलग से है जिसमें सब कुछ सॉल्व किया हुआ ही है। कुछ नया सिखाएंगे तो वो हम रखेंगे, राइट, है ना? कितना भी तुम लोगों को